Hello everyone, online class 8th, subject science, chapter 17, part 4. Mars, Mangal. The next planet, the first outside the orbit of the Earth, is Mars. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. Mars has two small natural satellites. अगला ग्रह जो पृथ्वी की कक्षा के बाहर का पहला ग्रह है वह मंगल है। यह हल्का रक्ताभ प्रतीत होता है, इसलिए इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं। जुपिटर, बृहस्पति। Jupiter is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earths can be placed inside this giant planet. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth. It rotates very rapidly on its axis. बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह इतना बड़ा है कि लगभग 1300 पृथ्वियां इस विशाल ग्रह के भीतर रखी जा सकती हैं, परंतु बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करती है। जुपिटर हैज a large number of satellites. It also has finite rings around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of a telescope, you can also see four of its large moon. बृहस्पति के बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय भी हैं। आकाश में अत्यधिक चमकीला प्रतीत होने के कारण आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। यदि आप इसका प्रेक्षण दूरबीन की सहायता से करेंगे तो आपको इसके चार बड़े चंद्रमा भी देख सकते हैं। सैटर्न, शनि। Beyond Jupiter is Saturn, which appears yellowish in color. What makes it unique in the solar system is its beautiful rings. These rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. शनि बृहस्पति के परे शनि है, जो रंग में पीला सा प्रतीत होता है। इस ग्रह में रमणीय वलय इस सौर परिवार में अद्वितीय बनाते हैं। यह वलय नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। आप छोटे दूरदर्शक द्वारा इनका प्रेक्षण कर सकते हैं। शनि के भी बहुत से प्राकृतिक उपग्रह हैं। One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. शनि के बारे में एक रोचक बात यह है कि सभी ग्रहों में यह सबसे कम सघन है। इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यूरेनस एंड नेपच्यून, These are the outermost planet of the solar system. They can be seen only with the help of large telescopes like Venus. Uranus also rotates from east to west. The most remarkable features of Uranus is that it has highly tilted rotational axis. As a result, in its orbital motion, it appears to roll on its side. यह सौर परिवार के बृहत्तम ग्रह हैं। इनके केवल बड़े दूरदर्शकों की सहायता से ही देखा जा सकता है। शुक्र की भांति यूरेनस भी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है। इसकी विलक्षण
विशेषता इसके अत्यधिक झुका घूर्णन अक्ष है। इसके परिणामस्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है। द फर्स्ट four planets Mercury, Venus, Earth, and Mars are much nearer the Sun than the other four planets. They are called the inner planets. The inner planets have very few moons. सौर परिवार का प्रथम चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अन्य चार ग्रहों की तुलना में सूर्य के अत्यंत निकट हैं। इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों के बहुत कम चंद्रमा होते हैं। The planets outside the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much further off than the inner planets. They are called the outer planets. They have a ring system around them. The outer planets have large number of moons. वह ग्रह जो मंगल की कक्षा से बाहर है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपट्यून, आंतरिक ग्रहों को तुलना में कहीं अधिक दूर है। इन्हें ब्रह ग्रह कहते हैं। इनके चारों ओर ब्लय निकाय है। ब्रह ग्रहों के अधिक संख्या में चंद्रमा होते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य। There are some other bodies which revolve around the sun. They are also members of the solar system. Let's learn about some of them. ग्रहों के अतिरिक्त सूर्य की परिक्रमा करने वाले कुछ अन्य पिंड भी हैं। यह भी सौर परिवार के सदस्य हैं। आइए इनमें से कुछ के विषय में हम जानकारी प्राप्त करें। एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter, 17.25. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the sun. These are called asteroids. Asteroids can only be seen through large telescopes. क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों को केवल बड़े दूरदर्शकों द्वारा ही देखा जा सकता है। कमेंटस, धूमकेतु। कमेंटस are also members of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolution around the sun is usually very long. A cometus appears generally as a bright head with a long tail. The length of the tail grows in size as it approaches the sun. The tail of a comet is always directed away from the sun. धूमकेतु भी हमारे सौर परिवार का सदस्य है। यह अत्यंत परवलयी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफ़ी अधिक होता है। सामान्यतः धूमकेतु चमकीले सिरे और लंबी पूंछ वाले होते हैं। जैसे जैसे कोई धूमकेतु सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ आकार में बढ़ती जाती है। किसी धूमकेतु के पूंछ सदैव ही सूर्य से परे होती है। Many comets are now to appear periodically. One such comet is Halley's Comet, which appears after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. Can you tell when Halley's comets will be visible again? ऐसे बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं जो समय समय पर एक निश्चित काल अंतराल पर दृष्टिगोचर होते हैं। हेलेंका धूमकेतु एक ऐसा ही धूमकेतु है जो लगभग हर 76 ईयर के अंतराल में दिखाई देता है। इसे सन 1986 में पिछली बार देखा गया था। क्या आप बता सकते हैं कि अगली बार हेलिका धूमकेतु कब दिखाई देगा? मेटार्स एंड मेटोरिटेस, उल्काएं तथा उल्का पिंड। At night when the sky is clear and the moon is not
there you might sometimes see bright streaks of light in the sky. 17.27. These are commonly now as shooting stars, although they are not stars. They are called meteors. A meteor is usually a small object that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heat to up it glow and evaporates quickly. That is why the bright streak lasts for a very short time. रात के समय जब आकाश साफ हो तथा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा हो तो कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली धारी सी देख सकते हैं। इसे शूटिंग स्टार सा टूटता तारा कहते हैं। यद्यपि यह तारा नहीं है, इन्हें उल्का कहते हैं। उल्का सामान्यतः छोटे पिंड होते हैं जो यदा कदा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इनकी अति उच्च चाल होती है। वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तृप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारी अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called a meteorite. Meteorites help scientists in investigating the nature of the material from which the solar system was formed. कुछ उल्का आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व ही वह पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। यह वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड वैज्ञानिकों को उस समय की प्रकृति की खोज करने में सहायक होते हैं जिससे सौर परिवार बना है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कृत्रिम उपग्रह। यू मस्ट हैव heard that there are a number of artificial satellites which are orbiting the Earth. You might wonder how artificial satellites are different from natural satellites. Artificial satellites are man-made. They are launched from the Earth. They revolve around the Earth much closer than Earth's natural satellites, the Moon. आपने सुना होगा कि ऐसे बहुत से कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। आप यह जानना चाहेंगे कि कृत्रिम उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह में से किस प्रकार भिन्न है। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित है। इनका प्रमोशन पृथ्वी में किया गया है। ये पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह अर्थात चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इंडिया हैज बिल्ट and launched several artificial satellites. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellites are INSAT, IRS, Kalpana first, EDUSAT, etc. भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था। कुछ अन्य भारतीय उपग्रह INSAT, IRS, कल्पना, EDUSAT आदि हैं। Artificial satellites have many practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. They are also used for telecommunication and remote sensing. कृत्रिम उपग्रहों के बहुत से व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों का प्रेषण में किया जाता है। इसका उपयोग दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन के लिए भी होता है। I want to tell you that by remote sensing we mean collecting information from a distance. मुझे यह कहना है कि सुदूर संवेदन से हमारा तात्पर्य दूरी से सूचनाएं एकत्र करना है। थैंक यू।